It is the distance between. It is the distance between first minima. It is the distance between first minima on both sides of the center of screen. It is the distance between first minima on both sides of the center of screen. First minima. First minima path differences. First minima path differences equal to lambda. That is so 2d lambda by d. Next is difference between interference and diffraction. Difference between interference and diffraction. चाहे points में लिख लो चाहे table बना लो. Difference between interference and diffraction. Interference is the phenomena of superposition of waves coming from two independent sources. Phenomena of superposition of waves coming from two independent sources. Phenomena of superposition of waves coming from two independent sources. और diffraction में क्या था? Superposition of waves coming from two parts of the same wavefront. Whereas in diffraction, superposition of waves takes place between secondary wavelets coming from superposition of waves, the secondary wavelets coming from diffraction is the phenomena of superposition of secondary wavelets coming from two parts of the same wavefront.
Second point is in interference, intensity of all the maximas is same. In interference, intensity of all the maximas is same. Whereas in diffraction, intensity goes on decreasing. Whereas in diffraction, intensity goes on decreasing as we move away from central maxima. As we move away from central maxima. Third is in interference, all the fringes will have same width. In interference, all the fringes will have same width. In interference, all the fringes will have same width. Whereas in diffraction, width of central maxima is double that of secondary maximas. Read a numerical. In figure shown, numericals. In figure shown, if parallel beam of white light is used, on the plane of slits, then find the distance of nearest white spot. Then find the distance of nearest white spot from the center of screen. B part is if monochromatic light is used in place of white light, if monochromatic light is used in place of white light, find the wavelengths for which maxima is formed at O. Find the wavelengths for which maxima is formed at O. हमने white light use किया parallel to the plane of slits. हमने बताया ना स्क्रीन पे व्हाइट स्पॉट कहाँ पे होगा. व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाइट स्पॉट. व्हाइट स्पॉट मतलब
जहां पे सब वेवलेंथ्स का मैक्सिमा बन रहा हो, बिकॉज व्हाइट लाइट मीन्स नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आर देयर। अब मैक्सिमा का डिस्टेंस होता है डी लैम एन डी लैम्डा बाई डी। तो लैम्डा के साथ मैक्सिमा की पोजीशन बदलेगी, वो पॉइंट जहां पे सब वेव्स का मैक्सिमा बन रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। बिकॉज देयर कैन बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेवलेंथ, सबका मैक्सिमा कहां कोइंसाइड करेगा। अब सोचो, हमने कहा था y की वैल्यू एन डी लैम्डा बाई डी। अगर n 0 है तो सबके लिए y की वैल्यू सेम आ जाएगी, मतलब व्हाइट स्पॉट वो होगा जो सेंट्रल मैक्सिमा है। तो हमने बताना है सेंट्रल मैक्सिमा कहां है। सो यू कैन राइट, इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड, the white spot on the screen represents central maxima. White spot on the screen represents central maxima as this is the only point where all the waves superimpose constructively. अब ज्योमेट्री है सिंपल, दोनों सोर्सेस में डिस्टेंस कितना है, d। दोनों सोर्सेस में डिस्टेंस d है। जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो दोनों से सेम डिस्टेंस पे होगा, d/2 पे। ये डिस्टेंस 2d/3 है, ये d/2 है। यहां सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, तो दिस वुड बी 2d/3 माइनस d/2, तो at d/6। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ d/6 फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन। समझ में आया ना कैसे किया, कि दोनों सोर्सेस में डिस्टेंस d है, तो उसका मिड जो होगा d/2 उसके सामने बनेगा हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा। सेकेंड पार्ट है, हमें दिया पॉइंट O पे मैक्सिमा बन रहा है, तो कौन सी वेवलेंथ के लिए। पॉइंट O पे अगर मैक्सिमा बनता है तो कौन सी वेवलेंथ के लिए मैक्सिमा बनेगा O पॉइंट पे। कैसे कह रहे, we can say point O is पॉइंट O का सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस है d/6, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा। पाथ डिफरेंस का ये फॉर्मूला था y/d। तो इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा, यहां पे पाथ डिफरेंस कितना था 0, तो इस पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा, अगर ये y हमें पता है तो we say it's d/6। ये पार्ट डिफरेंस है, मैक्सिमा बन रहा है, मतलब पार्ट डिफरेंस इज n लैम्डा। तो लैम्डा कितना आ गया, वेवलेंथ कौन सी हो गई, यहां तो हो सकती है d²/6d, 12d, d²/18d एंड सो ऑन। इन सब वेवलेंथ के लिए मैक्सिमा बनेगा। अगर उन्होंने कोई स्पेसिफाई किया होता कि पॉइंट O पे थर्ड मैक्सिमा बन रहा है, तो हम इनको 3 पुट कर देते,
और कहा था सेकेंड मैक्सिमा बन रहा है तो हम एन को 2 पुट कर देते, हमें सिर्फ ये कहा था मैक्सिमा बन रहा है, तो बहुत सारी वेवलेंथ्स आ जाएंगे जिनके लिए मैक्सिमा बनेगा. Next to right. Next is a point source S. Emitting monochromatic radiations. Is placed between two mirrors, M1 and M2, as shown in figure. If maxima is formed at point O, if maxima is formed at point O, find the wavelength of light used. Find the wavelength of light used. हमारे को ऐसे क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास दो मिरर्स के बीच में एक सोर्स पड़ा है, इसके आगे लिख लो नो डायरेक्ट लाइट इज रीचिंग द स्क्रीन. ऐसे दो मिरर्स हैं, और ये स्क्रीन प्लेस्ड है एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल डी. यहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, जिसका M1 से डिस्टेंस है d/2 और M2 से डिस्टेंस है d. तो यहां से लाइट इधर गई, रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन पे आई, ये भी लाइट इधर आई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्लेक्टेड लाइट सुपर इम्पोज कर रही है. हमें दिया O पे मैक्सिमा बन रहा है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी है. अगेन मैक्सिमा बन रहा है, तो कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये नहीं पता, मैक्सिमा बन रहा है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. कैसे कर सकते हैं इसको. बिकॉज प्लेन मिरर इज यूज्ड. एस की इमेजेस बनेंगी दोनों मिरर्स में. प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो वही इमेज का डिस्टेंस होता है.
मतलब अगर ये सोर्स एस है, इसकी इमेज बनेगी यहां पे, M2 ने जो इमेज बनाई सोर्स की, ये डिस्टेंस D है तो D डिस्टेंस ही इधर नीचे बनेगी, ये डिस्टेंस D/2 है तो एक इमेज मिरर M1 में यहां बनेगी। इनको आप मान सकते हो दीज आर टू कोहेरेंट सोर्सेस। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, आप मान सकते हो कि वो लाइट S1 और S2 से आ रही है, बिकॉज रे डायग्राम की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं बनाऊं तो आप देखो रे डायग्राम कैसे बनना था, ये लाइट ने इधर जाना था, इधर से रिफ्लेक्ट होके, तो मैं इसको एज्यूम कर सकता हूं ना यहां से आई है, तो द टू मिरर इमेजेस एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ लाइट। नाउ इफ टू इमेजेस एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ लाइट, तो दोनों सोर्सेज में डिस्टेंस कितना है, S1 S2 में 3D, तो इसका सेंटर कहां होगा, 3D/2 पे, मतलब ये डिस्टेंस D/2, ये भी D/2, सेंटर जो है 3D/2 पे है, मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा वो यहां बनेगा, ये डिस्टेंस 3D/2, तो ये अगर यहां से यहां तक 3D/2 है, दिस इज, ये भी D/2 ही होगा। दिस इज पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। हमें दिया O पे मैक्सिमा बन रहा है, O का सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस कितना है, D/2, तो O पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा से जो डिस्टेंस है दैट इज D/2। सो डेल्टा एक्स अगर मैं निकालूं पाथ डिफरेंस फॉर पॉइंट O, अगर डिस्टेंस y हो तो पाथ डिफरेंस इज y D/d। उसमें न्यूमरेटर में कौन सा d था, स्मॉल d क्या था, तो इसमें डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस कितना है, 3D, तो पाथ डिफरेंस इज y इंटू 3D बाई, यही बना पाथ डिफरेंस, बिकॉज y की वैल्यू D/2 एंड डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस जो है दैट इज 3D। अब मैक्सिमा के लिए हमारे पास आ गया D², 3D² बाय 2D। मैक्सिमा के लिए दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू n लैम्डा फॉर मैक्सिमा, तो लैम्डा की कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, अगर n1 है तो, n2 है तो, सॉरी 3D² बाय 2D, और n2 है तो 3D² बाय 4D एंड सो ऑन। समझ में आया कैसे किया है? दोनों में डिस्टेंस कितना है, 3D, तो इसका सेंट्रल मैक्सिमा वही होता है ना, सोर्सेस का जो सेंटर है उसके सामने, तो सोर्सेस का सेंटर 3D/2 है, उसके बिल्कुल सामने सेंट्रल मैक्सिमा। y इज इक्वल्स टू, पर आपको पहले y तो निकालना ही पड़ना है ना, तो उसके बाद पार्ट डिफरेंस निकालोगे, बिकॉज आपका जो फॉर्मूला उसमें तो डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस d था ना, तो यहां तो 3D है। आया समझ कैसे किया? नेक्स्ट लिखो, इन YDSC,
lambda is 50 millimeter. In YDSC, lambda is 50 millimeter. And two parallel beams passes through a vessel filled with liquid as shown in figure. Filled with liquid as shown in figure. Point O is symmetrically placed if intensity of each beam is I. If intensity of each beam is I, find the intensity at point O. Find intensity at point O. हमारे को डायग्राम दिया है साथ में. इसमें कोई लिक्विड फील्ड है. इस लिक्विड का, इसको अगर मैं x इज इक्वल्स टू 0 मानूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायग्राम में दिया है. ऐसे लिख वेरिएबल. नहीं, बस पैरेलल बीम ऑफ लाइट है. एक बीम एयर से आ रही है और एक लिक्विड से आ रही है. पॉइंट ओ सिमेट्रिकली प्लेस्ड है. यहां पे इंटेंसिटी बतानी है कितनी है. इन दोनों बीम्स की इंटेंसिटी आई थी. एक वेव यहां से आई, अगर दोनों एयर में से आती तो यहां पे मैक्सिमा बनना था. बट अब एक एयर में से आ रही है और एक लिक्विड में से जा रही है. अगर कोई वेव लिक्विड में डिस्टेंस x ट्रैवल करे तो इट्स इक्वल टू व्हाट डिस्टेंस इन एयर, बाय म्यू या मल्टीप्लाइड बाय म्यू? मल्टीप्लाइड बाय म्यू. ऐसा क्यों? अब ऐसे सोचो, मान लो मेरे पास ये रीजन है, एक लाइट वेव ट्रैवल कर रही है एयर में. इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? x बाय सी. अगर वही मीडियम होता तो कितना टाइम लगता? मीडियम में स्पीड कम हो जानी थी म्यू टाइम्स, तो मीडियम में कितना टाइम लगा? म्यू टाइम्स ज्यादा. टाइम डिफरेंस कितना आया? मीडियम में इतना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है. इतने टाइम में कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया?
इनटू सी, मतलब कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, सॉरी म्यू टी माइनस टी एक्स, म्यू एक्स माइनस एक्स कर दो, एक्स लिया हमने क्योंकि इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, मतलब एयर में एक्स ट्रैवल किया तो मीडियम में म्यू एक्स ट्रैवल किया, तो हम इसको लिखते हैं कि डिस्टेंस एक्स ट्रैवल इन मीडियम इज इक्वल टू म्यू एक्स इन एयर। यहां पे एयर में डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, हाफ मीटर, इसने तो हाफ ही कवर किया ना, इसने कितना किया, अगर तो म्यू कांस्टेंट दिया होता तो मैं सीधा कर देता म्यू इनटू हाफ, पर म्यू वेरिएबल दिया है तो मेरे को पहले यहां पे एक छोटा सा रीजन लेना पड़ेगा, dx, dx in medium is equivalent to what distance in air, mu dx, म्यू की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट, x वेरीज फ्रॉम 0 to हाफ, यहां से लेके यहां तक, तो वो डिस्टेंस निकालोगे, वो जो भी वैल्यू आ गई, इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया हाफ, इसने हाफ से थोड़ा ज्यादा, तो इन दोनों में पार्ट डिफरेंस कितना आया, मतलब इसने अगर मान लो किया x और इसने किया x नॉट, तो पार्ट डिफरेंस इज x माइनस एक्स नॉट, पार्ट डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x, फेज डिफरेंस पता है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला 4i नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाय 2, समझ में आ रहा है कैसे करना है, पहले कंसेप्ट लिख लो, when light travels through a medium, when light travels through a medium, then when light travels through a medium, then distance x in medium is equivalent to, distance x in medium is equivalent to mu x in air as refractive index of liquid is variable, as refractive index of liquid is variable, therefore small distance dx, therefore small distance dx in medium is equivalent to mu dx in air and total effective distance निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ mu dx, म्यू की वैल्यू पुट कर दो, देखना क्या आ रही वैल्यू सॉल्व करके, अपर लिमिट ही निकालनी है, लोअर लिमिट तो 0 ही है, कितनी है वैल्यू 5/6, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, मीडियम का डिस्टेंस जो है वो 5/6,
एयर में हाफ, तो पाथ डिफरेंस कम्स आउट टू बी वन बाय थ्री। फेस डिफरेंसेस टू पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। लैम्डा में क्वेश्चन में दिया है 50 मिलीमीटर, मतलब 50 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड डेल्टा एक्स इज 1/3। तो फेस डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा आया था वेवलेंथ तो 50 मिलीमीटर। क्या ही वैल्यू, फोर्टी पाई बाय 3 आ रही है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला तो कितनी आई सॉल्व करके, फोर्टी पाई बाय 3। तो उसका हाफ हो जाएगा 20 पाई बाय 3। ट्वेंटी पाई बाय 3 की वैल्यू आपको पता है -हाफ। वैल्यू निकालनी आती है ना नॉन मेडिकल वालों को तो 20 पाई बाय 3 की, बिकॉज 20 पाई बाय 3 इज 6 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। तो 6 पाई को तो छोड़ दो, 2 पाई बाय 3 की वैल्यू लेनी है 120 डिग्री की। मेडिकल वालों को नहीं आती है। 180 तक याद है वैल्यूज कॉस और साइन की, कि नहीं याद वो भी? मैं टेबल दूंगा, रट लेना वे, बिकॉज 180 तक तो आनी चाहिए वैल्यूज। मतलब आप इसको यहां से भी कर सकते थे, जैसे आपका ये 40 पाई बाय 3 आ गया ना, तो ये तो छोड़ देते हैं, सिर्फ यही लेनी है। 12 पाई को छोड़ना क्यों है, ये नॉन मेडिकल वाले बताएंगे, बिकॉज 2 पाई के बाद वहीं आते रहना ना बार बार, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो 2 पाई के मल्टीपल्स को तो छोड़ देते हैं हम। 6 पाई मतलब 3 रेवोल्यूशंस, 12 पाई मतलब 6 रेवोल्यूशंस, तो उसे उसके आगे वाली टर्म देखनी होती है। नेक्स्ट राइट, at t is equal to 0, two sources of light, S1 and S2, are as shown in figure. Both the sources starts moving simple harmonically with amplitude A and angular velocity omega.
find the coordinates of third maxima at any time t. Find the coordinates of third maxima at any time t. t इज इक्वल्स टू 0 पे ये सिचुएशन है, इसने सिंपल हार्मोनिकली मूव करना शुरू कर दिया। इसने भी अगर ये दोनों ऐसे मूव करना शुरू हो जाएंगे, मतलब सोर्सेस के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो हमने बताना है थर्ड मैक्सिमा का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा एट एनी टाइम टी। हमें दिया है कि दे आर S1 एंड S2 ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली विद एम्पलीट्यूड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो अगर S1 S2 सिंपल हार्मोनिकली मूव करते हैं with amplitude A and angular frequency omega, तो their displacement any time is SHM की इक्वेशन क्या थी? A sin omega t। मतलब अगर मैं आफ्टर टाइम t देखूं तो सिचुएशन क्या बनी? थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। इनिशियली S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस है 4a। आफ्टर टाइम t इसकी डिस्प्लेसमेंट है और सेम टाइम में इसकी डिस्प्लेसमेंट भी सेम, मतलब ये इनकी न्यू पोजीशन हो गई। तो ये डिस्टेंस कितना है? एंड दिस इज डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस। थर्ड मैक्सिमा कहां बनता है? तो थर्ड मैक्सिमा वाई कोऑर्डिनेट क्या था? तो थर्ड मैक्सिमा की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये आंसर था। सिर्फ आपको स्मॉल डी निकालना था कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस कितना होगा। टाइम के साथ वाई बढ़ेगा या कम होगा? दोनों, बिकॉज साइन की वैल्यू 0 से 90 बढ़ेगी, मतलब पहले वो नीचे आ रहा है, तो एक स्टेज आएगी जब वो ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर भी जाएगा। इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है ना, तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? जब ये ए डिस्टेंस ऊपर आ गया, यहां से ए डिस्टेंस नीचे आ गया, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया? 2a सोर्सेज में। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा जब ये इस पोजीशन से ए नीचे गया और ये ऊपर गया? तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज है 6a। तो जब ये इस पोजीशन से ऊपर जाना शुरू करेगा ऑसिलेशन करता हुआ, तो स्मॉल डी बढ़ गया, तो वाई कम हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्मॉल डी बढ़ता जाएगा, वाई कम होता जाएगा। जब ये मीन पोजीशन से नीचे आएगा तो स्मॉल डी की वैल्यू कम होगी और वाई की वैल्यू बढ़ेगी।
in YDSC. Distance between slits is small d and screen is at a distance of capital D. Distance between slits is small d and distance of screen is capital D. Find the distance between 2 points. Find the minimum distance between. Find the minimum distance between 2 points on the screen. Find the minimum distance between 2 points on the screen where intensity is 75% of the maximum intensity. Find the distance between 2 points on the screen where intensity is 75% of the maximum intensity. मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटरफेरेंस में क्या होती है 4i, उसका 75% 3i, बिकॉज 3/4 ऑफ 4i, 3/4 ऑफ 4i इज 3i. तो हमने स्क्रीन पे ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताना है मिनिमम वेयर इंटेंसिटी इज 3i. समझ आया क्वेश्चन क्या है? अगर मैं इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं, ये अगर सेंट्रल मैक्सिमा मान लो, तो इंटेंसिटी का ग्राफ ऐसे बना था इंटरफेरेंस में. सब मैक्सिमास की इंटेंसिटी सेम. इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है 4i. यहां पे इंटेंसिटी कितनी है 0. तो इस पॉइंट पे कहीं पे 3i होगी. ये डिस्टेंस बताना है कितना वेयर इंटेंसिटी रिड्यूसेस थ्रू 3i. बिकॉज एक बार जब ये वाई ये सेम ही होंगे, सिमेट्रिक ग्राफ है, तो एक निकाल लो उसका डबल कर दो. फाइंड द डिस्टेंस वेयर इंटेंसिटी इज 3/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी. बोर्ड का पीवाईक्यू है, पहला क्वेश्चन दिया बोर्ड का पीवाईक्यू इस साल दिल्ली स्टूडेंट्स 2025. नहीं कर पाते तो फिजिक्स पढ़ने का टाइम 1 घंटा बढ़ा दो. (2√3) क्या आगे, मतलब कैपिटल डी स्मॉल डी क्या आ रहा है? कैसे करेंगे देखो, हमें बस ये फॉर्मूला है. हमें ये गिवन है
ये फेस डिफरेंस आएगा π/3 का। अगर फेस डिफरेंस π/3 का है तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? λ/2 इंटू डेल्टा वाई। डेल्टा वाई इज, तो पार्ट डिफरेंस इज λ/6। पार्ट डिफरेंस और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन क्या आता? तो वाई तो वाई कितना आ गया? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2y। सो d λ/3d। समझ में आया कैसे किया? पहले इंटेंसिटी से फेस डिफरेंस से पार्ट डिफरेंस से वाई। तो आप अगर जनरल फॉर्मूलेस बनाना चाहो, जैसे हमारे पास है रिजल्टेंट इंटेंसिटीज अगर मैं फाई को पार्ट डिफरेंस के टर्म में लिखूं तो क्या आएगा? 2 π/λ डेल्टा x। तो 5/2 कितना हो गया? अगर आपको डेल्टा x पता है तो आप सीधा भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। डेल्टा x और y में रिलेशन क्या है? y/d। तो मैं इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूं, y/d। तो मतलब बेसिकली फॉर्म ही चेंज करनी है। अगर आपको रिलेशन से याद है तो आप कोई भी रिलेशन एक से दूसरा बना सकते हो। नेक्स्ट राइट। ये वैसे बहुत आसान है, जेई मेंस का है, बट नथिंग, लिख लो चलो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड मैक्सिमा and third minima on opposite sides of the screen, on opposite sides of center of screen. Find the distance between second maxima and third minima on opposite sides of center of screen in terms of small d, capital D and lambda. In terms of small d, capital D and lambda. Second maxima और third minima में distance।
7. Second maxima, third minima. $3.5. आपका भी 7. अगर मैं इंटरफेरेंस पैटर्न बनाऊं, ये थर्ड मिनिमा at a distance of 2.5 beta. Second maxima 2 beta. तो 2 beta plus 2.5 beta 4.5 beta. यही तो बताना है बस. तो ये 5/2 बीटा है और ये 2 बीटा है. टू 2.5 प्लस 2 आपका 3.5 कैसे आया था? आपका 7, दो लोगों का 7 भी आया था. मेरे को लगा ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो कोई गलत नहीं करेगा. नेक्स्ट टाइम करते हैं. अब एक टॉपिक करना है पोलराइजेशन. सिलेबस पे मत जाना, सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है. बोर्ड जेई नीट कहीं मेंशन नहीं है. हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसका. तो सिलेबस में नहीं है तो भी, प्लस रे ऑप्टिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस में उसका कंसेप्ट यूज हो जाता है. जैसे हम रे ऑप्टिक्स के एमसीक्यूज की कई बार असाइनमेंट करें ना, उसमें दिया होता है रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो उसका एक लॉ आता है पोलराइजेशन में. पोलराइज होता क्या है? पोलराइजेशन केमिस्ट्री में जो पढ़ा था ना, पोलराइज लाइट एक ही निकोल प्रिज्म से पास की तो क्या हुआ?